Hi everyone. So again we are going to see three important questions and hope so you all are good, doing good. सब लोग अच्छे हैं and अच्छे क्यों नहीं होंगे, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छा कमरा है, अच्छा एसी है रूम में, पूरा फैसिलिटीज़ पूरा लाइक काइंड ऑफ मोस्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल स्टूडेंट्स. सो प्रॉब्लम तो वहाँ है ना कि आप लोग एफर्ट 100% दो, राइट. अगर नहीं दे पा रहे हो तो इट्स टोटली योर फॉल्ट. See, there are many students who are not getting even at 40% of the facilities what you people are getting. Okay? आप देख लो कि इतने students तैयारी करते हैं and just like more than 40% students are not getting such facilities. But sitting in the AC room, sitting in a very good infrastructure, very good house and very good food, all things, books, copies, notebooks, सब कुछ मिल जाने के बाद भी if you are not able to clear or if you are not able to even clear your prelims examination, it's totally your fault, 100%. Okay, so make sure you work hard, you give your best 100%. Now moving to the very first question today, let's talk about the bio E3. Now ये कितना like कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये. Okay, ये bio E3 was not something very difficult topic. It was in news. Just आपको if you have just focused and while reading itself आपने E3 को डिकोड किया होता कि E3 का मतलब क्या है एंड थोड़ा सा भी निमोनिक्स बना के याद करने की कोशिश की होती तो आप कभी नहीं भूलते इस चीज़ को. ओके, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ E3? तो इफ यू सी हियर द मीनिंग ऑफ E3 इज, जस्ट पॉज एंड आंसर, द मीनिंग ऑफ E3 इज D. ओके, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड द एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो आप देख लीजिए यहाँ पे इट स्टैंड फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. सो आपका देख लीजिए ये बायो E3 का मतलब यही है. इट इज़ पेविंग द वे फॉर द इंडियाज बायो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ. तो होप सो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था मतलब. ठीक है. नाउ रॉकेट्स रिक्वायर हीलियम बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. ओके, रॉकेट्स रिक्वायर helium. So exactly they are asking you why helium is used in rocket. Why helium is used in rockets? So it is basically taken from a very good article. Why do rockets require helium from the Hindu? Okay, from the Hindu magazine. अब देखो ये सारा आर्टिकल ही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है and all statements which I asked you from this article itself. Okay, आप देखो यहाँ पे helium's low density means its atom can escape through small gaps or seals in the storage tanks and fuel system. But because there is very little helium in the Earth atmosphere, leaks can be easily detected. First, helium also has very low boiling point, allowing it to remain a gas even in a super cold environment. Second, okay, अब आप देखो कि helium is inert, it doesn't react with any other substances or combust, and it's second lightest element after hydrogen. So rockets needs to achieve the specific speed and altitudes to reach and maintain the orbit. A heavier rocket requires more energy. So it is the lightest element, it is going to help rockets. Okay, so this is what about the why helium is used in rocket, and if you see all three statements you will get to know the answer. Got it? तो इसका आंसर क्या है? D 1, 2 and 3. मुश्किल नहीं था, it's from the article itself. लर्न तो करना चाहिए था आपको. Okay, now moving to the third question, it's also very easy today. Okay, I will not say simple questions, we are going to make it थोड़ा सा टफ करते हैं. Okay, अच्छा टफ करने का है तो what questions we should see? Let me see any tough question. सारे ही अच्छे क्वेश्चन है. मैं क्या, अच्छा चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, ना मैप बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. इट्स लाइक कि प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस फुल ऑफ ऑन द गोल टाइप. आप टेस्ट करोगे तब आपको पता चले ऐसे सारे इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं. तो इफ यू रियली वांट टू एंजॉय एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, प्लीज गो टू गोल टाइप पार्ट. ओके, नाउ इफ यू सी हियर लद्दाख, अब यू हैव टू नेम द प्लेसेस विच शेयर बोथ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. ठीक है, दोनों उस प्लेस को शेयर करता है. इट्स कॉमन टू वो, इट्स नॉट सिंगल, राइट. तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नाउ वी क्लोजली गो टू द मैप. ओके, नाउ यू सी द मैप, दिस इज जम्मू कश्मीर, दिस इज लद्दाख. ठीक है, नाउ सी द जम्मू कश्मीर. इधर तो चाइना से बिल्कुल कट हो गया है, जम्मू कश्मीर का चाइना से बिल्कुल कट है. ओके, अफगानिस्तान से भी इट्स टोटली कट. तो दोनों में कॉमन क्या नहीं होना चाहिए? अफगानिस्तान एंड चाइना शुड नॉट बी देयर. ओके, तो इफ यू सी हियर
अफगानिस्तान वाले ऑप्शंस और चाइना वाले ऑप्शंस तो आप बिल्कुल हटा दो, कॉमन नहीं है बिल्कुल। अब बची हिमाचल प्रदेश एंड पाकिस्तान। नाउ यू सी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री ये भी बना रहा है एंड ये भी बना रहा है, देख रहे हो आप। और ये छोटा सा हिमाचल प्रदेश रहा, इधर थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं आई है, इसके साथ भी दोनों बाउंड्रीज बना रहे हैं। मैप देखोगे तब आपको दिखेगा। सो व्हाट आई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 and 4। समझ में आया? सो आप देख लो यहाँ पे लद्दाख शेयर्स बाउंड्री विथ ऑल व्हाट प्लेसेस एंड यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर शेयर्स बाउंड्री विथ ऑल प्लेसेस। आप इनको ध्यान से देखोगे, देन यू विल गो टू सी द मैप एंड देन फाइनली यू विल आंसर। अच्छा, दिस इज अ 3 क्वेश्चन सीरीज, बट आज थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिक्कत है एक बार देखते हैं, राइट? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन इज करेक्ट? नाउ इफ यू सी the president shall lay down recommendation made by the finance commission before each house of the parliament. The commission shall have all the powers of the civil court and members of the finance commission are eligible for the reappointment. Now the most tricky part if you see here first of all that इतनी सारी बातें तो फाइनेंस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं, there is no mention of such things in the constitution. Okay, तो first of all you should learn here that article, जो हमारा आर्टिकल है 281, what does it says? The president shall every recommendation shall be laid before each of the house. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 281 में। ठीक है, क्लियर? Now if you see the second, third statement, if you see here, if you see the third statement, members of the finance commission are eligible for the reappointment. समझ में आया? अब आप देखो कि रीअपॉइंटमेंट इट्स रिटन हियर दैट टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द रीअपॉइंटमेंट एंड दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा? पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर द कोर्ट। तो ये तो हमें पता है, चलो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारी बातें कहाँ लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखी है, इट इज रिटन अंडर दिस एक्ट। तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन the finance commission can be reappointed, गलत। constitution has given the civil power under civil code of civil procedure 1908 to the commission, गलत। ओके, तो आप इस एक्ट को भी खोल के देखोगे, आपके टेस्ट सीरीज में आई हैव कवर्ड इन वेरी एक्सटेंसिव वे, बट इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज प्लीज लुक इनटू दिस एक्ट and you will see lot of information, qualification and everything regarding the finance commission. तो ये एक ट्रिक है, it's not trick, it's a hidden concept. Well you know this, otherwise you learn today. Okay, तो ये आज के क्वेश्चंस हमने देखे कुछ, and rest we will see tomorrow again. Thank you so much, we'll see tomorrow.